Now, it is my immense honor and privilege to introduce our distinguished chief guest for today's event, Mr. Manoj Kumar Srivastav Sir, the State Election Commissioner of Madhya Pradesh. Sir is a 1987 batch IAS officer of Madhya Pradesh cadre. Sir has been appointed as the State Election Commissioner of Madhya Pradesh on January 1, 2025. As Chief Election Commissioner Officer of the MP SEG, Sir oversees all aspects of local elections, including electoral processes, election conduct, and administrative oversight. Sir's vision as Madhya Pradesh State Election Commissioner is to ensure free, fair, transparent, and efficient local elections, strengthen the use of innovation and technology in electoral process, and position Madhya Pradesh as a model for other states by sharing best practices and supporting electoral reforms. Prior to his appointment as State Election Commissioner, he was a member of Madhya Pradesh Administrative Unit Reorganization Commission. Prior to this, Sir has served as the Additional Chief Secretary in the Panchayati Raj and Rural Development Department, Madhya Pradesh. During his career, he served in various capacities, including Indore District Collector, Commissioner, Department of Public Relations, and Principal Secretary, Commercial Tax Department, and held positions within the Chief Minister's Secretariat. His extensive experience in Panchayati Raj, rural development, public administration, and public relations is expected to be an asset in overseeing local body elections. Beyond his bureaucratic career, Mr. Manoj Kumar Srivastava Sir is a distinguished literator and has authored 38 books. He is the chief editor of the literary magazine Akshar, which is published by the Rashtra Bhasha Prachar Samiti. He has received several prestigious accolades for his literary and cultural contributions, including Kabir Samman, which is Madhya Pradesh's highest literary award, Swami Vivekanand Award, and the International Aviation Award, presented by the International Council for Cultural Relations and Nehru Centre, London. Ladies and gentlemen, let's welcome our esteemed chief guest to share words of wisdom with us. Dr. A.S. Khalsa ji, Amarjit Singh. I know him since his infancy. Swapnil ji, he was talking about भोपाल, तो मुझे लग रहा था कि भोपाल को बी टाउन कहा जाता है डेमोग्राफिकली, और भोपाल को हम जैसे लोगों के कारण कहा जाता है बाबू टाउन, तो वो भी बी टाउन ही है। लेकिन भोपाल को जो है बिजनेस टाउन बनाने में जो मेहनत आप कर रहे हैं, हम लोग भोपाल की तरफ से आपको आपको इंडक्शन पे सबको बहुत शुभकामनाएं। और हेड स्टार्ट कार्यक्रम में आपका मुझे याद आता है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, जो स्टार्टअप्स के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नाम रखा है, वो भी जो है हेड स्टार्ट ही है। और यूँ देखें तो अमेरिका में जो एजुकेशन के आरंभ के लिए जो उन्होंने एक प्रोग्राम किया हुआ है, उसका नाम भी हेड स्टार्ट है। एंटरप्रेन्योरशिप की बात मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ कि अभी मैं कुछ दिनों पहले एक स्टडी पढ़ रहा था, तो उसमें वो लोग बता रहे थे, ये MIT की थी, और जो उनका बर्कले का हास स्कूल है, उसमें वो बता रहे थे कि MBA करने वाले जो बच्चे हैं, वो 10 साल के भीतर वहाँ एंटरप्रेन्योरियल मोड में चले जाते हैं विद इन 10 years। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों के बीच में जो है लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, गर्ल स्टूडेंट्स की। ग्लोबली भी जो है 40% जो स्टूडेंट्स हैं वो MBA में जो कर रही हैं,
तो ग्लोबली भी जो है वो 40% हैं लड़कियां, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होती मुझे। और यूं देखता हूँ मैं तो जो मैं तो लिटरेचर का विद्यार्थी था, इन्होंने मुझे बुला लिया है MBA के इंडक्शन में एड्रेस करने के लिए, लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है इसमें MBA में वो ये बात अच्छी लगती है कि इसमें सॉफ्ट स्किल्स पर भी जो है बात होती है। नॉर्मली आप लीडरशिप पे बात और कहाँ करते हैं, कभी आप इमोशनल इंटेलिजेंस पे बात नहीं करते। UPSC का एग्जाम यदि आप लोग देंगे तो आप पाएंगे कि आजकल उसमें EQ की बात हो रही है, इमोशनल क्वोशेंट की, इमोशनल इंटेलिजेंस की। विलियम गोल्डमैन की पुस्तक भी उस पर है। तो वो जो उस पर बात और सस्टेनेबिलिटी पे बात, इन इश्यूज पे बात जो है वो होनी शुरू हुई है। तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न जो है वो MBA है, और उसने इस बिजनेस में इन सब चीज़ों को देखना जो है सिखाया है। और इस हिसाब से देखिए, अभी आप बता रहे थे उस बच्चे की कहानी कि जिसकी विद इन अ शॉर्ट पीरियड जो है इतनी ग्रोथ हो गई। तो मैं सोच रहा था कि वार्टन स्कूल और लंदन जो स्कूल ऑफ बिजनेस या लंदन बिजनेस स्कूल जो है वो भी दावा करते हैं कि उनके यहाँ भी पढ़ने के बाद बहुत जल्दी जो है लोगों की ग्रोथ हो जाती है। लेकिन मैं देख रहा था कि उनका दावा ये था कि विद इन 5 years वो जो है इस हालत में पहुंचते हैं कि उनका 50 से 100% इंक्रीज होती है, और आपकी तो मल्टीफोल्ड इंक्रीज है। तो इसलिए वो बहुत बड़ी बात है। MBA जिस तरह से आपका कहना चाहिए कि वैल्यू इंक्रीज करता है, बहुत कम दूसरे कोर्स हैं जो करते हैं, और ज़्यादा लोग भी नहीं हैं उसमें, उसकी भी शॉर्ट सप्लाई है। साल भर में जो है 2.5 लाख MBA ग्लोबली होते हैं, और उस 2.5 लाख में जो ग्लोबली होते हैं उनमें से एंटरप्रेन्योर बन के तो और भी कम निकलते हैं। तो इस हिसाब से जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं आप सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग आगे बढ़ें। लेकिन मैं कुछ कॉशनरी नोट पे भी बात करूं, कुछ जो है कहना चाहिए कि सर्कमस्पेक्शन जरूरी होता है, कुछ गार्डेडनेस जरूरी होती है, खासकर जब हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहाँ की मैनेजमेंट का ही बोलबाला है। और जैसा कि अभी बताया जा रहा था कि मैंने 38 पुस्तकें लिखी, वो थोड़ा सा पुराना हो गया AI का, अब वो 41 हो गई हैं। आप सही कह रहे थे कि AI वो काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे अंतर्राष्ट्रीय वातायन पुरस्कार मिला था, तो मैं अभी जब सुन रहा था तो उन्होंने वातायन को एविएशन कर दिया। तो मैंने कहा मैं एविएशन में कहाँ से आ गया। एनीवे, मैं कह रहा था कि मैं मेरी जो पुस्तकें लिखी, जैसे मेरी एक पुस्तक है गणेश अलग अलग गणनाएं, जब मैं उसको लिख रहा था तो उसको लिखने के क्रम में मैंने देखा कि एक कोई BK चंद्रशेखर, तो उन्होंने लिख रखी है पुस्तक मैनेजमेंट गुरु श्री गणेशा। फिर मैं जो सुंदरकांड पे मैंने करीब 18 पुस्तकों की 18 वॉल्यूम्स की एक पूरी सीरीज लिखी है। तो जब मैं उसको लिख रहा था तो उसमें मैंने देखा कि एक सुनील योगी जी हैं, उन्होंने लिखी मैनेजमेंट गुरु भगवान श्री राम, और एक और सज्जन थे तो उन्होंने लिखी लॉर्ड हनुमान एंड हिज आर्ट ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट। कृष्ण जन्माष्टमी पर अभी 2 साल पहले जब मेरी पुस्तक आई प्रणाम श्री कृष्ण, तो उस समय भी उसको लिखते हुए मैंने देखा कि कोई P ओझा थे, तो वो लिख रहे थे मैनेजमेंट गुरु लॉर्ड श्री कृष्णा, और एक जोगिंदर राणा थे तो वो लिख रहे थे लॉर्ड कृष्णा द अल्टीमेट मैनेजमेंट गुरु। मुझे, और ये सिर्फ भारत की बीमारी नहीं है, आई टेल यू, ये वैश्विक है, ग्लोबल हो गई। यानी एक ड्रॉप बाइनर है, तो वो मैनेजमेंट मेथड्स ऑफ जीसस वो पुस्तक लिख रहे हैं, और जीसस को मैनेजमेंट के हिसाब से जो है आंक रहे। तो ये एक तरह से मैनेजमेंट की आज की दुनिया में जो है लोकप्रियता उसको दर्शाता है, ये बात तो सही है।
लेकिन कई बार मुझे लगता है कि हम अपने इन धरोहर पुरुषों को, हम अपने इन प्रतिभा पुरुषों को एक मैनेजर सिद्ध करके उनका डिवैल्यूएशन कर रहे हैं, या कि उनको उनकी महत्ता को पूरी तरह से आंक रहे हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छा है कि युवा पीढ़ी जो है, चलिए इस बहाने जो है एक नई किस्म की जिज्ञासा, कौतूहल और उत्सुकता के साथ जो है इन्हें देख रही है। नहीं तो देखती ही नहीं थी। चलिए इस बहाने ये तो शुरू हुआ। लेकिन मैनेजमेंट की अपनी मिसचीफ है और आप लोग सीखते सीखते सीखेंगे उसको। अध्यात्म में जब प्रबंधन घुस जाए तो आप सोच सकते हैं कि मैनेजमेंट की रीच कितनी व्यापक है। लेकिन कई बार मैं देखता हूं कि इससे अध्यात्म तो इसलिए था कि वो वाणिज्यीकरण का अध्यात्मीकरण हो, वाणिज्य का अध्यात्मीकरण हो, स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ कॉमर्स हो, उल्टा गया। अध्यात्म का वाणिज्यीकरण हो गया है। अब आप देखिए बड़े बड़े ट्रेंडी किस्म के आध्यात्मिक आश्रम बनते हैं और सोल डॉक्टर्स पैदा हो गए। और आप गुरुओं की बात चल रही थी ना, नॉर्मन डी वीरगुड ने एक पुस्तक लिखी है, हाउ टू बिकम अ मॉडर्न गुरु। और उस पुस्तक में वो जो है बताते हैं कि 7 घंटे से लेकर 7 दिन के भीतर कैसे एक सफल गुरु बन सकते हैं। तो बन जाते हैं लोग। कई बार उनका स्थान जेलों में होता है लेकिन बन जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस चीज के कुछ दुष्परिणाम भी है। मैनेजमेंट अच्छा है, आप लोग सीखें। मैनेजरियलिज्म से बचना, वो मैं एक कॉशनरी नोट की तरह आपको बोल रहा हूं, क्योंकि फिर आप धर्म को भी ब्रांड की तरह ट्रीट करोगे। फिर जो, जैसा कि मैं अभी वेस्टर्न चर्चेस में देख रहा था, वहां उन चर्चेस की ग्रोथ स्ट्रेटेजी पे बात होती है। वहां जो है उनकी अटेंडेंस मैट्रिक्स, उसकी चर्चा कर रहे हैं। वहां कस्टमर रिटेंशन टैक्टिक्स जो है चर्च में, उस पर बात हो रही है। भक्त जो है कस्टमर हो गए, रिटेंशन है। तो जो फेथ कम्युनिटीज थी, आप पाओगे कि इस मैनेजरियलिज्म ने उस एंटरप्राइज में बदल दिया। और जो चीज सेक्रेट थी, पवित्र थी, उस पवित्रता को वस्तु में बदल दिया गया। हम कार्ल मार्क्स जो है वो एक रीफिकेशन की प्रोसेस की चर्चा करते थे कि जिसमें आप संबंधों को भी वस्तु की तरह देखने लगते हो। तो वो रीफिकेशन हो रहा है। तो जो जीवन के ट्रांसेंडेंटल पर्पसेस थे, जो कहना चाहिए कि इस संसार की जो माया से कहीं बाहर, कहीं आगे उनका अतिक्रमण करने के जो पर्पसेस थे, वो पर्पसेस जो हैं अब कंज्यूमर एक्सपीरियंस में बदल गए। और इसलिए मुझे थोड़ी सी चिंता होती है। होता क्या है उसमें? जो बात ईश्वर के साथ है, गॉड के साथ है, स्पिरिचुअलिटी के साथ है, वो बात नेचर के साथ भी होने लगती है। इन नेचर को हम लोगों ने जो बचपन में कविताएं और लिमरिक्स याद करते थे, तो मुझे याद है कि वो एक लिमरिक्स थी कि फॉर आई हैव नेवर सीन एंड आई विल नेवर सी a poem as beautiful as a tree, for poems are made by fools like me, but only God can make a tree. तो पहले तो हम लोग नेचर को उस तरह से देखते थे। हमारे यहाँ तो जो हमारी संस्कृति में चलता था कि परमात्मा यानी पुरुष और प्रकृति, उन दो की बात चलती थी। और अब जो है वही प्रकृति को जो है आप इकोसिस्टम की तरह देखते हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज की तरह देखते हैं। वही प्रकृति है, वही पर्यावरण है, वो अब आपको जो है नेचुरल कैपिटल लगता है। वही चीज है जहां जंगल है और नदी है। हम लोग तो नदियों को पूजा करते थे, उसकी जंगलों की पूजा करते थे हम लोग। अब वो जो है हम उसकी इकोनॉमिक सर्विसेज पे बात करते हैं, जंगलों और नदियों की।
कितना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है, और टूरिज्म रेवेन्यू जो है कितना जनरेट किया जा सकता है उससे, उस पर बात होने लगी। आप देखो तो, हालांकि मैं भी कुछ कुछ उसका दोषी हूँ, क्योंकि महाकाल लोग जो आप उज्जैन में देखते हैं ना, वो मेरा ही कुछ किया था। लेकिन जो टूरिस्टिफिकेशन है रिलीजियस प्लेसेस का, पर्यटनीकरण हो गया। आप एक भक्त की तरह जा रहे हो वहां के, एक पर्यटक की तरह जा रहे हो। तो और मैं जो वो रिश्तों की बात कह रहा था ना, कि रिश्तों का रीफिकेशन हुआ है, तो अब आप जो है अपने परिवार को एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरह ट्रीट करते हो। अब आपके सामने अपने परिवार के, अपने जो है कहना चाहिए कि माता पिता, अपने जो है पत्नी, अपने जो बच्चों का ध्यान रखना, वर्क लाइफ बैलेंस ऑप्टिमाइजेशन का इश्यू, और आप उनके लिए टाइम ब्लॉकिंग करते हो। अब आप उनकी माइलस्टोन ट्रैकिंग करते हो अपने बच्चों, यानी फैमिली जो है एक मैनेज्ड यूनिट की तरह ट्रीट हो रही है। तो मुझे लगता है कि वहां कहीं कुछ जो है गड़बड़ हो रही है, उस पर हम लोगों को ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो रिलेशनल ब्रेकडाउन होता है, ये हमारे पूरे फ्यूचर को एज अ ह्यूमन बीइंग उसको अफेक्ट करने जा रहा है। आप अपने पर्सनल वेलनेस जो है, आपके खुद का स्वास्थ्य, उसको देखो आप, उसके साथ ही क्या हाल हुआ है। आपकी हेल्थ केयर जो है एक सर्विस इंडस्ट्री है, और उसके कारण हॉस्पिटल मैनेजमेंट इश्यूज हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट आप करोगे तो उसमें होगा क्या, क्योंकि हॉस्पिटल की इकोनॉमिक्स को आपको चलाना है, तो साहब ओवर ट्रीटमेंट होगा। वो जांचें रिकमेंड की जाएंगी जिन जांचों की आवश्यकता ही नहीं है, प्रतिदिन देख रहे हैं उसको। पेशेंट नहीं होगा, क्लाइंट होगा। और आप जो है उसके कहना चाहिए कि कॉस्ट एफिशिएंसी और उसके थ्रूपुट जो है उसको निकालते फिरोगे। तो ये जो चीज होगी, ये हीलिंग में जो वो पवित्र विश्वास था उसको खत्म करेगी, और आप बैड टर्नओवर रेट्स जो हैं उनको गिनते रह जाओगे, और कितने एथिकल कंप्रोमाइज उस चक्कर में करते चलोगे, सिर्फ इस बात के लिए कि ये मैनेजरियलिज्म जो है हमारे भीतर आ गया। वो तो मैं आजकल उस मैनेजरियलिज्म को जब देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जो डेथ थी, मृत्यु, इतना कारुणिक अवसर, अवसाद का समय, उसको भी जो है लोगों ने फ्यूनरल्स के जो है सर्विस पैकेज आजकल देने शुरू कर दिए। और वही जैसे काफी नहीं हो, तो ये भी है कि अब शायद ऑथेंटिक मॉर्निंग के लिए, प्रामाणिक रूप से जो क्रंदन करने के लिए भी लोगों के पास समय नहीं बचा है। हम लोग रोदाली की पुरानी परंपरा की हंसी उड़ाते थे, आजकल जो है वो आपको बाकायदा बोरो कर सकते हैं कि लोग आएंगे और रोएंगे, चूंकि आपका कोई अपना जो है मर गया। तो माने जो कहना चाहिए कि ग्रीफ की, हमारी जो दुख की जो पवित्र रस्में थी, उनमें इस तरह की बाधा हो रही है। और वो एक स्टैंडर्डाइज्ड एक्सपीरियंस जो है, क्योंकि वो जो रोने जिसके लिए जिसको आपने हायर किया है, उसको भी उसने भी स्टैंडर्डाइजेशन कर लिया, उसका हर जगह उसी तरह से करना उसको, तो उस तरह की स्थिति हो रही है। और जैसे जैसे ये स्थिति होती है, वैसे वैसे हमारा कमोडिफिकेशन होता जाता है। मैं आप लोगों को बस उसी के लिए कॉशन कर रहा हूँ। वहां पर यदि हम लोग सावधान रह गए, हम मैनेजर बने, लेकिन हमारी अप्रोच जो है मैनेजरियल नहीं हो। मैनेजर वर्क्स इन द सिस्टम, अ लीडर वर्क्स ऑन द सिस्टम। आप लोग वही लीडर बनेंगे। शुभकामनाएं।